السلام علیکم ناظرین، سمیع ابراہیم حاضر خدمت، میرے ساتھ پروفیسر غنی جاوید۔ ستاروں کی گفتگو، کیا ہماری زندگیاں ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے ہم مختلف سیاستدانوں پر ہم نے بات کی ہے اور زیادہ تر ان پلینٹس کا ذکر کیا ہے ہم نے جو اثرات تو ڈالتے ہیں لیکن تھوڑا سخت اثرات، جس کی وجہ سے پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ اب دنیا ہمیں پروفٹس آف ڈوم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لیکن آج ہم گفتگو میں پلینٹس کا ذکر کریں گے، ان پلینٹس کا بھی ذکر کریں گے جو اچھائی لے کے آتے ہیں، جو ہماری زندگی میں بہت سارے جو تغیرات ہیں وہ لے کے آتے ہیں، جن میں بہت سارے بہتر بھی ہوتے ہیں۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ، آپ آج آئیں اور آج آپ بڑی تیاری سے ہیں اور کچھ اچھی باتیں بتانے کے موڈ میں ہیں۔ کیسے پلینٹس ہماری زندگیوں کو کنٹرول کرتے ہیں؟ سر اچھی باتیں یا بری باتوں کا یہاں ذکر نہیں ہوگا، یہاں اسی بات کا ذکر ہوگا جو پلینٹ کے زیر اثر آنے سے ہمارے معاشرے میں وقوع پذیر ہونے والی ہیں، اور وہ اب وقت آ گیا ہے۔ پہلے ہم باتوں میں اس کا ذکر کرتے رہے ہیں، لیکن ایک منظم طریقے سے، ایک بندے بندائے طریقے سے ابھی تک ہم نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ یہ پلینٹ کس طرح سے انداز ہونے والے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور یہ کیا کیا اثرات لے کر آ رہے ہیں۔ اچھا، تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان باتوں کو اپنے ناظرین تک پیش کیا جائے، اور تاکہ وہ آنے والے واقعات کو پہلے سے سمجھ سکیں اور خود بھی دیکھیں کہ کیا یہ اسٹرالوجر جو کہہ رہے ہیں کیا معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، ٹھیک، کیا یہ معاشرے میں ہونے والے واقعات کی صحیح نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو ناظرین السلام علیکم، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ وہ جیسے کہ ابھی سمیع صاحب نے فرمایا ہے، ہم انہی دو پلانٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ تک مزید ان کے اثرات پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو معاشرے میں سماجی، سیاسی، مذہبی، ذاتی، اجتماعی کئی برائیاں پھیلتی ہیں اور ہم لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ جہاں تک متاثر ہونے کا تعلق ہے، آپ اگر سوچیں تو آپ محسوس کریں گے کہ واقعی ہمیں ان سب چیزوں کا اثر ہم پر موجود ہے، ذہن پر رہتا ہے میرے، لیکن ہم ایکشن نہیں لیتے، محسوس کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ مثلا سماجی طور پر لیجئے، کتنی برائیاں ہیں ہمارے معاشرے میں سماجی طور پر، ہم ان کا اثر قبول کرتے ہیں، ایک دوسرے پر تبصرے بھی کرتے رہتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ سیاسی طور پر بہت زیادہ خرابیاں ہیں، کرپشن ہے، کرپٹ لیڈر ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں، ایڈیٹوریل لکھے جاتے ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں۔ اب ہم پروگرام بھی اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ تک یہ ساری باتیں پہنچا دی جائیں، لیکن عمل کوئی نہیں کرتا۔ میں آپ کو جس چیز کا لا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو دو پلینٹ جن کا ہم نے شروع سے ہی ذکر کرنا اپنا آپ کو اب تک ان کے اثرات یا ان کی نام بھی بتا دیں ان دو پلینٹس کا ہاں جی، دوبارہ۔ تو ان پلینٹ کے نام ہے پلوٹو اور زحل۔ پلوٹو اور زحل، جی، دونوں پلینٹ یہ دن بدن قریب سے قریب تر سے قریب ترین ہو رہے ہیں، اور جنوری میں یہ ایک دوسرے سے ہیئر یو آر، آپ نے گرافیکلی بہت اچھا بتایا اس کو، یہ ان کا اتصال ہونے والا ہے، ان کا کران ہونے والا ہے۔ اچھا، ان کا جب کران ہو تو معاشرے میں جو برائی ہوتی ہے وہ سر نکال کر باہر آ جاتی ہے اور معاشرے کو دبوچ لیتی ہے۔ اچھا، تو ہمارے ہاں جو بھی سماجی برائیاں ہیں، مثلا نہ ہماریاں ہیں ہر مسئلے میں، اونچ نیچ کا سوال ہے، نہ ہماری ہے، اپنا لوگوں میں یہ احساس ہے کہ ہمیں شکار کیا جاتا ہے، یرغمال بنایا جاتا ہے۔ تو یہ معاش جب ستارے آئیں گے اس بات کا اتنا اثر ہوگا کہ لوگ باقاعدہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ایک تاریخ بن جاتی ہے۔ اچھا، تو جب بھی یہ ستارے آئے ہیں ایسے ہی سوئے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جناب ابھار دیتے ہیں اور معاشرے میں ایک طرح سے ٹینشن پیدا ہو جاتی ہے۔ اب سیاسی طور پر بھی جن چیزوں کو ہم آج تک اگنور کر رہے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے یہ کرپشن اور جو کچھ یہ کرپٹ پالیٹیشین کرتے چلے آ رہے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ ان کے خلاف رد عمل شروع ہو چکا ہے،
क्योंकि इन प्लानट के ज़हूर पजीर या इनका किरान होने से पहले कई दफ़ा 3-4-5 महीने पहले ही असरात शुरू हो जाती हैं। अच्छा, तो आपने देखा कि असरात शुरू हो चुके हैं और करप्ट पॉलिटिक्स के खिलाफ कुछ न कुछ जितना अवाम चाहते हैं इतना तो नहीं अभी, लेकिन कुछ न कुछ इनके खिलाफ रद्द अमल हो रहा है। यानी आप कह रहे हैं कि जूं ये प्लेनेट नजदीक आ रहे हैं, तो वो जो चीजें ये उठ रही हैं, उठ रही रद्द अमल आ रहा है लोगों का, आ और रहा है। जनवरी में जब ये यूं होंगे तो उस वक्त फिर रद्द अमल ये भी अपने ऐसा अरूज लगता पर। है कि ऐसा लगता है कि अब जहन में ये बात नहीं रही। ऐसा लगता है कि लोग बाकायदा अमलन मैदान में आ गए हैं, खड़े हो गए हैं तारीख की शक्ल में। तो ये प्लेनेट हमें उकसा रहे हैं दिन ब दिन, अच्छा, हमें उस तरफ ला रहे हैं। और जनवरी में ऐसा होगा कि लोगों को इन चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा एहसास होगा। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि लोग बहुत अच्छा, अगर बुराई के खिलाफ उठते हैं लोग तो ये तो अच्छी बात है प्रोफेसर साहब, ये तो इन प्लैनेट्स का फिर पॉजिटिव असर है। लोग मतलब मसाइल ज़्यादा है ना जी। मसाइल ज़्यादा आदमी अगर अपने मसले के हल के लिए आवाज़ खड़ी करता है और उसके हम पीछे इस हद तक मसाइल ज़्यादा हैं कि एक ऐसा वक्त आ जाता है कि एक वो आवाज़ बन जाता है एक आदमी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल उस नाहमवारी का, उस करप्शन का, उस बुराई का, वो बदअमाली का, वो आदमी कोई भी खड़ा होगा वो आवाज़ बन जाएगा ये इन सितारों की आमद से। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इन सितारों की आमद से कई मसाइल जो हैं उनका वो अपना सर बाहर निकालेंगे, उनका बाकायदा एहसास किया जाएगा। मुमकिन है उनकी कोई आवाज़ बन जाए, मुमकिन है उनकी आवाज़ बनने से हमारे माशरे में बेहतरी खलबली मचेगी। अच्छा, खलबली के बाद तो फिर बेहतरी आएगी, तो ये खलबली वो है जिससे कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलता है। आएगा। सही कह रहे हैं, ये तो फिर इसी तरह मैंने जब जिक्र किया कि ये दोनों प्लैनेट जंग लाते हैं तो कई लोगों ने इसको बड़ा उस नेगेटिव सेंस में लिया। हालांकि बात ये है कि जंग इसलिए लाते हैं कि जंग आने से जो माशरे में सालों से जो बुराइयां, जो कुछ हो रहा है जिससे लोग मखलूक खुदा तंग है, ये जंग इसलिए लाते हैं कि उस मसले को ख़त्म करने के लिए रिएक्शन निकलता है उन चीज़ों से जो बहुत अरसे से लोगों को तंग कर रही हैं, और फिर अगर उस रिएक्शन का आउटकम बेहतरी आए तो एट द एंड ऑफ द डे तो फिर ये प्लैनेट्स बेहतरी लेके आए। प्लैनेट बेहतरी के, लेकिन बज़ाहिर ये ऐसे ही है जैसे कि मरीज से याब हो जाता है लेकिन सर्जरी के बाद दुरुस्त है, तो उस ये बेचारे का ऑपरेशन होता है। सर्जिकल प्लैनेट्स हैं। ऑफ कोर्स यू आर राइट, दे आर वेरी सर्जिकल बट दे ब्रिंग हेल्थ, they make the man stand up once again, and they make and they make the woman sit down. Of course not, they make her stand up and he मैं नाज़रीन में थोड़ा सा ज़रा मज़ा पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू में। ये बड़ी संजीदा गुफ्तगू है वैसे। ये सर्जरी करते हैं और ये सर्जरी तारीख की शक्ल में, ये सर्जरी जंग की शक्ल में, ये सर्जरी लोग किसी आदमी की आवाज़ नारा लगाने की शक्ल में। ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाता है जिससे कि माशरे में अथल मथल मच जाती है, माशरे में एक तरह का जो जिसे कहते हैं ना जी खिंचाव तनाव पैदा हो जाता है, और खिंचाव तनाव उस ईविल के ख़िलाफ़ पैदा हो जाता है, उस बुराई के ख़िलाफ़ पैदा हो जाता है जो कई सालों से साल से मखलूक खुदा को तंग कर रही होती है। अच्छा, कुछ माजी में जब ये करीब आए हों और कुछ दुनिया में तगय्युरात हुए हों, वो कोई आप तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो सकता है आपकी इस गुफ्तगू से? अगर आपने ऐसी बात की मैं आपसे क्या अर्ज करूं, ये तो आपने ऐसी बात की जिससे कि ये बात अब वाज़ेह हो जाएगी। देखिए सन 14 की लड़ाई कितने आदमी मरे होंगे? हाँ, बहुत आदमी मरे, लेकिन कॉलोनियलिज्म ख़त्म कर गई। हाँ बिल्कुल, सर्जरी हो गई सर्जरी, कॉलोनियलिज्म ख़त्म हुआ बिल्कुल। एंड देन व्हाट हैपेंड? लीग ऑफ नेशंस, कॉलोनियलिज्म वाज फिनिश्ड, और दुनिया में लीग ऑफ नेशंस का वो ज़हूर हुआ। हाँ जी, और ये आइए दूसरी जंग अजीम की तरफ आइए। हाँ, उसके बाद दूसरी जंग अजीम आप देखिए, सन्नतकारी ने जो इंडस्ट्रियलिज्म है वो उसने दुनिया में कितना जुल्म बपा किया हुआ था। अब जर्मनी ने जिसको उन्होंने मारूम किया उसके खिलाफ रद्दमल किया कि ये तुम क्या कर रहे हो। बिल्कुल। अगर देखा जाए, मुझे इजाज़त है एक बात करने की, ये जो दूसरी जंग अजीम हुई ये तो हमें आज़ादी दे गई। बिल्कुल, पाकिस्तान को आज़ादी। हिटलर उठा, हिटलर ने उनको तहस नहस कर रख दिया कि तुमने ये सनती निज़ाम सारा दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया, इसके खिलाफ ही उठाना। हाँ जी बिल्कुल। तो चुनाचे ये सर्जरी है, और सर्जरी है तकलीफ देती है मरीज़ को, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते महीना 2 महीने चारपाई पर रहना पड़ता है, बट
What happens afterwards? The man gets up, he starts walking, he is healthy, he is again joining life. And he is joining life after understanding a problem. Yeah. So these two planets, they are after us. Apparently they seem to be terrible. Apparently they seem to be igniting something like war. But what actually happened? इससे कोई ना कोई बुराई ख़त्म हो जाएगी. अब इंसान की फितरत समी भाई ऐसी है कि फिर जब 20 साल 50 साल 70 साल गुजरते हैं, कोई ना कोई और बुराई जड़ पकड़ लेती है. फिर जब पकड़ती है इतने में ये दोनों फिर आ जाते हैं. आपके लिए ये और अपने नाजरीन के लिए मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हर 38 साल के बाद आ जाते हैं. और जो कुछ माशरे ने बीज बोया हुआ होता है ये उसको आकर कहते हैं बाहर निकालो और सारे खड़े हो जाओ और इसकी अब तुम्हें सज़ा मिलेगी. क्यों इग्नोर करते रहे हो? क्यों लापरवाही की आप लोगों ने? क्यों इन सियासी लीडरों को बर्दाश्त करते रहे हो? आप इधर आ जाओ. सो एक्चुअली वो जो आप कह रहे थे कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आप कह रहे थे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ऑपरेशन है, जैसा हमें फैमिली में किसी का ऑपरेशन कराते हैं. तो ये जो सितारे आने वाले हैं ये बहुत सारी बुराइयों को समाजी सियासी, अब देखिए एक और ज़हन में मेरे बात आ गई, मजहबी तौर पर कितनी इंतहा पसंदी है. इस इंतहा पसंदी ने कितना फसाद डाला हुआ है. ये जब आते हैं तो अमूमन तारीखें उठ खड़ी होती हैं मजहबी इंतहा पसंदी के, और कोई तहरीक ऐसी भी उठ सकती है और ऐसी होती है जिससे कि माशरे में फिर बैलेंस हो जाता है. इसको बैलेंस करें, इसको ख़त्म करें, तवाज़ुन आ जाता है. ये तवाज़ुन लाएंगे अब. और एक और बात भी है, जिस तरह मजहबी इंतहा पसंदी है, इस तरह समटाइम्स कुछ सोसाइटीज़ में वो जो लिबरल इंतहा पसंदी है वो भी खराबी का बायस बनती है. लोग उसके भी खिलाफ खराबी का बायस बनती है. और दूसरा इग्नोर की जाती है कि हाँ ठीक है हो जाएगा. हर कोई बात कर रहा है, हर कोई कह रहा है, अमल कोई नहीं. प्लैनेट आते हैं वो कहते हैं कि नाउ गेट अप, डू समथिंग अबाउट इट, अदरवाइज वी विल स्वॉलो यू. ज़बरदस्त. तो आज मेरे ख्याल में हम ये बड़ा नाजरीन, ये आपने प्रोफेसर साहब की गुफ्तगू सुनी. ये जो दो प्लैनेट्स हैं प्लूटो और ज़ोहल, ये जनवरी में ये नज़दीक बिल्कुल इनका इत्तिसाल होगा. 6 जनवरी और 12 जनवरी के दैट वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन असरात जो ये प्लैनेट्स नज़दीक आ रहे हैं, शुरू हो जाते हैं, तो हमें नज़र आ रहा है बहुत सारा. तो ये बज़ाहिर डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन उसका जो एंड है वो उस बुराई का खात्मा हो जाता है जिसको लोग सह रहे होते हैं, जिसके हाथों एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं. बट एट द कॉस्ट ऑफ सर्जरी. अच्छा जी, अब हम इजाज़त चाहते हैं, लेकिन आप ये जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें और ये जो बेल आइकन है इसको आप दबा दें, ताकि जैसे ही मैं प्रोफेसर साहब की नई वीडियो लोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा. और आइंदा जो हमारी वीडियोज़ आ रही हैं उसमें हम जो प्लैनेट्स हैं, एक एक प्लैनेट को डिस्कस करेंगे, उसके ख़वास डिस्कस करेंगे, उसके ज़ेरे असर जो लोग हैं वो किस तरह से सोचते हैं, क्या करते हैं, किस चीज़ का उन्हें एहसास रखना चाहिए, कौन सी चीज़ उनकी कमज़ोरी है, कौन सी उनकी स्ट्रेंथ है. जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको अपने पार्टनर्स के हवाले से, अपने दोस्तों के हवाले से, अपने ख़ानदान के हवाले से लोगों को समझने का मौका मिलेगा और आप इस इल्म को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ये बात मैं फिर कहूँगा आपसे कि ये एक डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है और ये बहुत एंशंट इल्म है. तो इसलिए ये आप ज़रूर इसको तखसीस रखिएगा, इसका ख्याल रखिएगा. गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है और हम कोई उस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन इस सेकुलर इल्म की मदद से आपके जो मसाइल हैं उनको यकीनन आपका हल देने की हम कोशिश करते हैं. अब इजाज़त दीजिए और इंशाअल्लाह अगली जो वीडियो है उसमें हम आपसे मुखातिब